زاد السعید فی الصلاۃ علی النبی الوحید صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کی نسبت سے میں ایک دوسری بات عرض کروں، کیونکہ ماہ ربیع الاول میں مؤرخین کے جمہوری نظریے کے پیش نظر اس مبارک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ولادت ہوتی ہے، جس حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کے نظریات اور اعمال دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کے سامنے چونکہ آپ اہل علم ہیں، آپ طلبہ اسلام ہیں، دینی کتب کا مطالعہ آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے، امت مسلمہ کی دینی خدمات یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ کل آپ سے کتاب کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ کتاب ہے کتاب الفتاوی الحدیثیہ، شیخ الاسلام علامہ ابن حجر الہیثمی الشافعی السعدی رحمہ اللہ۔ آپ سے سوال کیا جائے گا، کیا آپ شیخ الاسلام ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ کی شخصیت کو مانتے ہیں؟ آپ نے جواب دینا ہے بالکل مانتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، فقہ کے اندر وہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہوتے ہیں، اور علم حدیث میں، علم تاریخ میں، علم تفسیر اور تصوف میں ان کا بہت ہی بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ پھر آپ سے پوچھا جائے گا، آپ ان کی بات مانتے ہیں؟ آپ نے جواب دینا ہے بات مانتے ہیں، لیکن اتنی بات تو ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے علاوہ، یعنی حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں سوا دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا ہے کہ جن سے خطا ممکن نہ ہو۔ قلم تقدیر کے علاوہ دنیا کا کوئی قلم نہیں ہے جس قلم کے اندر احتمال خطا موجود نہ ہو اور بلکہ خطا نہ ہوئی ہو۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ جتنے بڑے ہیں، ہمارے دل میں اتنا احترام ہے۔ کیا ان سے خطا ممکن ہے؟ سامنے والا، آپ نے ان کی نبض پر ہاتھ رکھا، اب وہ جو ہے دائیں بائیں بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ کا عقیدہ یہی ہونا چاہے ہر عالم دین کے بارے میں خطا ممکن ہے، اور امکان خطا سے یہ تو مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ آدمی غلط ہے، اس کا وہ اب علمی رتبہ باقی نہ رہا۔ خطا ممکن ہے، تبھی تو وہ مخلوق ہے، تبھی تو ہم اس کو عام کہتے ہیں، ورنہ وہ منصب نبوت پہ ہوتی اعوذ باللہ۔ خطا جب بھی ہم کسی عالم کے لیے تسلیم کرتے ہیں، ہم یہ مانتے عقیدہ رکھتے پیغمبر نہیں ہے، اور یہ شخص جو ہے تنہا اجماع امت بھی نہیں ہے، کیونکہ امت کا اجماع اس میں بھی کوئی خطا کا احتمال نہیں ہے، لیکن لہٰذا تنہا آدمی اس سے خطا کا احتمال ہو سکتا ہے۔ اب آپ سے پوچھا جائے گا، چونکہ آپ نے جو ہے نا اصول کی بحث کی، اصول کی بات کی، اب وہ بے جھجک تو بات نہیں کہے گا، لیکن بات اس نے چلانی تھی، اب پوچھے گا۔ کتاب الفتاوی الحدیثیہ کے اندر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ آپ نے جواب دینا مروجہ عید میلاد النبی کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ میلاد الگ چیز ہے، مروجہ عید میلاد النبی الگ چیز ہے۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد ہے، مولود ہے، موالید ہے، ان تمام الفاظ کا معنی ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش، وقت پیدائش، زمان پیدائش، زمین پیدائش، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ولادت، تذکرہ میلاد، اور ولادت سے متعلق جتنے سارے متعلقات ہیں ان تمام چیزوں کو ذکر کرنا، یہ ہے مولود، یہ ہے میلاد، یہ ہے ولادت، یہ ہے میلاد۔ آپ اس کو جس نام سے بھی ذکر کریں، عربی زبان میں اس کی گنجائش موجود ہے، الا کہ شریعت کے تقاضوں کے خلاف نہ ہو۔ لہذا اب کیا مسئلہ کہنا ہے؟ چونکہ آپ نے ہر لفظ سے اس مقدمے کو کمزور کیا، اب وہ سہمتے سہمتے کہے گا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں، ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ، ان سے ایک سوال کیا جاتا ہے، کتاب الفتاوی الحدیثیہ صفحہ نمبر 202 اور سوال نمبر ہے 90۔ ایک سوال کیا جاتا ہے جس میں میلاد کے حوالے سے بھی کوئی بات چل رہی ہے، تو جواب میں آیا ہے، الموالد والاذکار التي تفعل عندنا اکثرها مشتمل علی خیر۔ الموالد، ذکر ولادت کرنا، اس کے لیے کسی مجلس کا انعقاد کرنا، یہاں تو تاریخ تو طے نہیں ہے نا، یہاں تاریخ طے نہیں ہے، اس عبارت سے ان لوگوں کا مقدمہ ثابت تو نہیں ہو سکتا ہے نا، کیونکہ اہل سنہ والجماعہ کا جو مروجہ عید میلاد النبی کے حوالے سے جو سوال ہے، وہ سوال ہے کہ پورے سال میں ایک دن متعین کرنا اور اس دن کے لیے فضیلت کا عقیدہ رکھنا
उस तारीख के लिए फजीलत का अकीदा रखना, इसी दिन के अंदर आपने महफिल मीलाद मुनक़िद करना, मर्द और जन का इख्तिलात, इश्तिहारबाजी, दावत और रोड ब्लॉक करना, गाड़ियों की रैलियां निकालना, ये जो सिलसिला है और इसके अंदर और भी जो खुराफात और बेदीनी और मुखालफत उसूल शरीयत होती है, हम तो उन चीज़ों के मुखालिफ हैं। बाकी रसूलुल्लाह अलैहि सलातो उसका तज़किरा विलादत करना, पूरे साल करना, हम तो इसको ईमान समझते हैं। बल्कि आप हमें गिला क्यों करें? हमारे उलमा तो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हमारे तलबा मदारिस हैं जिनकी खलवत और जलवत में इल्म हदीस में हर बार काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह अलैहि सलातो वसल्लम की पूरी जिंदगी को बताया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। हमारे लिए तो जिंदगी का हर दिन जो है जिक्र विलादत से मामूर होता है, भला हम मुखालिफ क्यों हो? हमारा तो शिकवा उन लोगों से है कि पूरे साल सोते रहते हैं और साल की एक तारीख को वो फजीलत देते हैं, खुद अल्लाह तो नहीं देते हैं ना, वो जो आपने दिन मुकर्रर किया, तारीख आपने मुकर्रर की, जगह आपने मुकर्रर की, फजीलत आप दे रहे हैं, मुतयन आप कर रहे हैं, अकीदा आप बना रहे हैं, तो आपने उस दिन को तमाम फजीलतों से भर दिया अपने उसूल के एतबार से। हमारा सवाल यह है, क्या आप खुदा बन गए या पैगंबर बन गए? क्या आपको ये चीजें पता चली और इस्लाम इससे खामोश है? हमारा शिकवा तो इस बात पे है, हमारा शिकवा रसूलुल्लाह अलैहि सलातो वसलाम की विलादत और मिलादुन नबी पे भला कैसे हो सकता? इस किस्म का शिकवा और शिकायत करना ये तो कुफ्र से खाली नहीं। तो लिहाजा शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न हजर अल हैसमी रहमहुल्लाह किताबुल फतावा अल हदीसी में जो बात लिखते हैं वो बिल्कुल अलग है। फरमाते हैं रसूलुल्लाह अलैहि सलातो वसल्लम का तज़किरा विलादत करना, वल अज़कारुल लती तुफ़अलु इंदना, और उसमें जो अज़कार जो जिक्र होती, नसीहतें होती है, मुश्तमिलुन अलल खैर, वो तो खैर पे मुश्तमिल है, गलत भी नहीं है। जैसे दारुल देवबंद का मुहद्दिस शेखुल हदीस, वो शमाल तिरमिजी पढ़ाते हैं, हुजूर की पूरी जिंदगी समझाते हैं, ये है उसमें मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की विलादत, पैदाइश, उस वक्त क्या मामलात हुए, क्या वाक़यात रूनुमा हुए, उस चीज को तफसील के साथ तलबा को समझा रहे हैं। यह है मवालिद और यह है वल अज़कारुल लती तुफ़अलु इंदना, अक्सर मुश्तमिलुन अलल खैर, बिल्कुल ये दरस हदीस जो रसूलुल्लाह अलैहि सलातो वसल्लम के मनाकिब और उनके दरजात और उनके खैर और उनकी जिंदगी को जेर बहस लाकर तलबा को पढ़ाया, सिखाया, समझाया जाता है। फरमाते तो मुश्तमिल है खैर पे, का सदक़तिन व ज़िक्रिन। अब दौरे हदीस में उस्ताद रसूलुल्लाह अलैहि सलातो वसल्लम की तालीम भी दे रहे हैं, उनकी अखलाकी जिंदगी बता रहे हैं, और उस्ताद ने कुछ हदिया उठाया और तलबा को दिया। फरमाती है कोई गलत नहीं है। व ज़िक्रिन, और तलबा जिक्र भी कर रहे हैं, हजरत शेख दरस हदीस दे रहे हैं, वो हुजूर के नाम पे सब पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो जिक्र है। वसलातन वसलामुन अला रसूलिल्लाह व मदही, और उस दरस हदीस की मजलिस में वो तलबा हजारों की तादाद में होते हैं, वो सब पढ़ते हैं हुजूर की जात का नाम सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात भी पढ़ते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं, व मदही, उसका तारीफ करते हैं, तलबा सुनते हैं। फरमाते इसमें बड़ा कबाहत क्या है? अलबत्ता ये जो लोग शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न हजर अल हैसमी अश-शाफ़ी रहमहुल्लाह का ये हवाला पेश करते हैं, आपका जवाब यह होना चाहिए, अगर आप किताब पढ़ने वाले होंगे, आपका जवाब यह होना चाहिए क्या किताब के अंदर बस यही एक लाइन थी, आगे पीछे कुछ है? ये आप भागने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने इनको भागने नहीं देना। क्यों? आगे जो बात है फरमाते हैं व अला शर्रिन बल शुरूर। इब्न हजर फरमाते हैं कभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे विलादत के लिए ऐसी भी मजलिस लगती है जिसके अंदर एक शर नहीं बल्कि शुरूर ही शुरूर होते हैं। ये बात तो ये कौम को नहीं बताएंगे ना, इनको पता है हमारी जो मजलिसें लगती है इस दिन और तारीख में वो खैर पे मुश्तमिल नहीं होती, वो शर और शुरूर पे ही मुश्तमिल होती है, जिस वजह से ये इस किताब का आधा हवाला तो कौम को बयान करेंगे लेकिन पूरा हवाला कौम के सामने नहीं रखेंगे। हजरत इब्न हजर हैसमी क्या फरमाते हैं? व अला शर्रिन बल शुरूर। हाँ, कभी ऐसा होता है मीलाद के लिए मजलिस रखी गई लेकिन उसके अंदर एक शर नहीं हजार शुरूर होते हैं। लौ लम यकुन मिनहा इल्ला रुयत निसा लिर्रिजाल अल अजानिब। इसमें अगर कुछ भी ना हो, देखिए आज ये तकरीबन जो है 9वीं सदी के बुजुर्ग आलिम है, ये उस जमाने के अंदर ये शर बयान कर। आज क्या है? आज तो फहाशियत और उरियानियत का दौर है। आप देख लीजिए आज का और आज से पहले तकरीबन 500 साल पहले की बात हजरत बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं अगर इन मजालिस में कोई एक शर भी मौजूद ना हो, लेकिन एक शर तो जरूरी होगा, वो ये है कि वहां अजनबी मर्द और औरतों का इख्तिलात जरूर होगा। यह शर तो दुनिया में सबसे बड़ा शर है। जहां नबी की जिक्र के नीचे मर्द और औरतों का इख्तिलात, बेहयाई और बेशर्मी को रिवाज दिया जा रहा है, जिसमें हुजूर ने फरमाया अजानिब को आंखों से देखना जिना है, कानों से उनकी तन्हाइयों को सुनना जिना है, उनके लिए दिल का इरादा बनाना है, बदकारी है। फरमाते हैं मीलाद के नाम पे कुछ मजालिस वो होती है जिनमें एक शर नहीं हजारों शुरूर, और उन हजार शुरूर में सबसे उससे भी बढ़कर जो शर है वो मर्द और औरतों का इख्तिलात। भाई ये हवाला कौम के सामने रखे। आपकी कोई मजलिस कामयाब होती ही नहीं उसमें नौजवान किस्म की लड़कियां ना हो,
उम्र दराज किस्म की लड़कियां औरतें ना हो, आपकी कोई मजलिस बनती नहीं है ना उसके बगैर। आप उनसे चंदा भी बटोरना है, उनसे नाते भी पढ़वानी है, उनके हाथ में कुमकुमे भी थमाने हैं, उनसे उनसे आपने नारे भी लगवाने हैं। आप देखिए जो हवाला कौम को दे रखे हैं, उस हवाले का पूरा हवाला कौम के सामने क्यों नहीं लाते हैं? फरमाते वबाज़ुहा लैसा फ़ीहा शर लाकिन्नहु क़लीलुन नादिर। हाँ, कुछ मजालिस वो होती है जिनके अंदर वाक़ियतन शर नहीं होता, लेकिन फरमाते वो न होने के दर्जे में। और हाँ फरमाते हैं कलीलुन नादिर, वो बहुत ही कम है। और अशाज़ु का नादिर फरमाते हैं जो मिकदार में कम हो वो ना होने के दर्जे में। 99% मजालिस शर से बरी है, 1% नहीं बल्कि 1% का -1% उसमें खैर है। फरमाते ये तो ना होने के दर्जे में है। और यहाँ जो माशरे में जो बातें ज्यादा चलती है वो जो ज्यादा शर से भरी होती है उनकी मंजर कशी होती है। और जहां खैर हो वो इस वजह से खैर होता है क्योंकि उसके अंदर वो इंतजामात नहीं होते कि आपने मर्द को भी बुलाना है, औरतों को भी बुलाना है, साज भी हो, ढोल भी हो, डफली भी हो, हाँ नाशना हो, नाराबाजी हो, दीगर चीजें हो, खिलाफ दिन मामलात हो, जिस वजह से उनके उस मजलिस के अंदर शर नहीं होता है। वला शक्का अन्नल क़िस्म अल-अव्वल ममनूउन लिल क़ाइदतिल मशहूरा अल मुक़र्ररा अन्न दर अल मफासिद मुक़द्दमुन अला जल्बिल मसालिह। काश ये लोग ये पूरी इबारत कौम के सामने रख लेते ना, इनका पूरा पस मंजर सामने आ जाता। हजरत शेखुल इस्लाम इब्ने हजर अल हैसमी अश-शाफ़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इसमें कोई शक नहीं है ये जो मजालिस की पहली किस्म है जिसमें तरह तरह के शुरूरात होते हैं, फरमाते हैं ये इस उसूल के एतबार से नाजायज और हराम है इस किस्म की मजलिस से करना जो उसूल की किताबों में मुकर्रर है। अन्न दर अल मफासिद मुक़द्दमुन अला जल्बिल मसालिह, कि अगर किसी चीज मजलिस में फायदा भी हो और नुकसान भी हो, उस नुकसान से कौम का ईमान बिगड़ सकता है। उस मजलिस में अगर फायदा भी हो आप उस फायदे को भी छोड़ दीजिए, लेकिन उस मजलिस में जो शर और शुरूर मौजूद है उन शुरूर की वजह से आप उस मजलिस के बिल्कुल भी करीब ना हो जाए। यह हवाला रख लीजिए ना कौम के सामने। फमन आलिमा वुकू शैइन मिन अश-शर्रि फीमा यफ़अलु मिन ज़ालिका फहुव आसिन आसिम। फरमाते हैं अब जो बुजुर्ग, अब जो खतीब, अब जो आलिम जानता है हर साल की तरह इस साल भी मजलिस मौलूद को हमने मुनक़िद करना है जिसमें औरतें आती हैं, जवान बच्चियां आती हैं, तरह तरह के अजानिब आते हैं, गैर शरई उमूर उसमें होते हैं। सुन तो लीजिए, वो जानते हैं कि इसके अंदर मुनकरात पाए जाते, बेदीनी और खिलाफ शरा आमाल इसके अंदर साबित होते हैं। अगर ये आने वाला खतीब कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर इसके इल्म में ये बातें हैं कि ये चीजें यहां होती है, जानने के बावजूद वो उस मजलिस में शामिल हो जाए, हजरत शेखुल इस्लाम इब्ने हजर अल हैसमी अश-शाफ़ी रहमहुल्लाह फतवा देते हैं 9वीं सदी के तमाम अहल सुन्नत उलमा की नुमाइंदगी करते हुए, ये जो अब आने वाला मेहमान होगा गलत जानने और देखने के बाद भी शामिल होता है, फवा आसिन, यह नाफरमान है, शरीयत का मुखालिफ है, गुस्ताख है, बेअदब है और दीन का दुश्मन है। आज भी आप इनको बता दीजिए, आप जहां जहां रहते हैं, हाँ मजालिस से उर्स हम तो मना नहीं करते, उर्स का जो तस्वूर है शरीयत में हम मना क्यों करें, लेकिन महफिल उर्स में जो मर्द जन का इख्तिलात होता है आप भी समझते हैं, आपके अकाबिरीन ने इसको गलत और नाजायज और हराम लिखा है, लेकिन आप ये सब कुछ जानने के बावजूद भी उस महफिल में शिरकत करेंगे, ये जानते हुए कि वहां गलत हो रहा है, हाँ ममनो आमाल है, खिलाफ शरा आमाल हो रहे हैं, आप फिर भी उसमें शरीक हो रहे हैं। तो शेखुल इस्लाम तो आप फतवा देते हैं फ़अन्त आसिम, तू तो नाफरमान है, तू तो शरीयत का भगोड़ा है, अपने अकाबिरीन का भगोड़ा है, कुरान का भगोड़ा है, सुन्नत का भगोड़ा है, सहाबा का भगोड़ा है, औलिया का भगोड़ा है। और जिस बुजुर्ग के नाम पे आप उर्स की मजलिस कर रहे हैं, आप इनकी तालीमात के भी बागी और भगोड़े हैं। लेकिन ये सब कुछ आपके अपने लोग भी देखते हैं, आप भी जानते हैं, फिर भी आपको मालाएं पहनाई जाती है। ये वजह यह है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मिशकात के अंदर रिवायत है, एक दौर आएगा अच्छाई को बुरा समझा जाएगा और बुराई को अच्छा समझा जाएगा। आप जितना बुरा करेंगे आपको उतनी मालाएं पहनाई जाएंगी, आपको उतना इस्तेमाल किया जाएगा और आप भी बढ़ते चले जाएंगे। इस मादियत की दुनिया में आप उस दहलीज की तरफ जा रहे हैं जहां जहन्नम तो सजाई गई है पर वहां जन्नत आपके इंतजार में नहीं है। तो आप तो हवाला देने के लिए निकले थे, लेकिन यहां तो मामला आपके गले की हड्डी बन गई। आपने तो बढ़ चढ़ के हवाला पेश किया, लेकिन ये वो हड्डी आपके गले की हो गई, ना आप निकाल सकते और ना आप निगल सकते। आपकी सांस इसी तरीके से अटकी रहेगी क्योंकि आपने कौम मुस्लिम के ईमान को तशकीक और तशवीश की वादी और उस दहलीज तक पहुंचाया है। न यहाँ के मुसलमान आगे बढ़ सकते हैं न पीछे बढ़ सकते हैं। ये ज़िम्नन मैंने जो हवाला अर्ज किया है
आप जुमला अकाबिरीन की कुतुब का मुताला, इसका ज़ौक़ अपने अंदर पैदा कर दीजिए। हाँ, एहतिमाल ख़ता कहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जो अकाबिरीन ने जो किताबें लिखी है उसमें जो हिस्सा आप इस्लाम की नुमाइंदगी पाएंगे उस चीज़ का बयान करना ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है। जिस भी मकतब फ़िक्र और जिस भी फ़िक्ही मसलक के साथ उनका ताल्लुक हो, वो हमारे दीन, ईमान और एहतराम के मुहाफ़िज़ और पहरेदार रहे हैं। आप उनके एहसान का कभी भी बदला अदा नहीं कर सकते हैं। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। अल्लाह उन अकाबिरीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। यहाँ तो मैंने मुख्तसरन अर्ज़ किया है, फिर किसी मजलिस में और बात चलेगी। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए।